has been. From a time when we had uncertainty about whether the league was going to happen or not, it had to happen outside of Pakistan. We brought it back. It rains. It's going to be washed out. But no, helicopter in the sky. The field is dried out when we're back on again. A roller coaster. COVID. Spectatorless matches. Drama, passion, thrills. We've been through it all. And together, we have persevered and made this brand a global phenomenon. The hype is real, believe it. You can almost feel it. People ask, compare this to other leagues, and I say no, because we are in a league of our own. A strong Pakistani core filled with Pakistani cricket talent, wonderful partners, loyal and passionate fans, some international stars. We have a lot to be proud of. But let's come back to today. I won't keep you waiting for too long. Momentous day, draft day, huge responsibility on the shoulders of those sitting at these tables, because this has been happening time and time again. Today is the day when the destiny of stars is written. So good luck to you. And just before I leave, a shout out to the PCB and the PSL teams who work day and night tirelessly to deliver time and time again. Well done. Keep the flag flying. Pakistan Zindabad. Thanks a lot. That was the CEO of the HBL PSL, Salman Nazir, and I would back up exactly from a player from the United Kingdom and from a commentator. The PSL is very special. The HBL PSL is very special, and some of these players round here make this competition one of the best in the world. Right, now it's time to invite the Chief Innovation and Transformation Officer of HBL to join us to the stage to share his feelings about this remarkable occasion. Of course, it's Abram here, please. The distinguished guests, all the franchise owners, and all those fans who are watching the ceremony on the TV screens, a very warm welcome to the rollout of the 10th HBL PSL edition. This is not just yet another edition of HBL PSL. For us, it's about celebrating a decade of successful tournament which started a decade ago from outside Pakistan and has faced lots of challenges, lots of hurdles, some natural, some otherwise, but has managed to survive. And not just survive, but it has managed to become stronger with every passing year. None of this would have been possible without the perseverance, without the commitment, without the resilience of all the franchise owners, the PCB, the sponsors, above all the fans, all the players who come in, who continue to bring very exciting, very thrilling matches year after year. We also believe that HBL PSL has also turned out to be a wonderful ambassador for Pakistan, an ambassador that conveys the story of resilience of people of Pakistan, an ambassador that talks about and that showcases the passion of the fans for cricket in Pakistan, an ambassador that demonstrates the warmth and the hospitality of the people of Pakistan towards all the visitors who come in to enjoy various parts of the HBL PSL.
While HBL PSL just lasts for a few weeks, but its impact can be seen way beyond that in the form of lots of bright talent that got discovered through various tournaments and that continues to go out and provide entertainment for fans around the world throughout the year, year after year. One of the best things we believe about HBL PSL is that regardless of the outcome, the tournament year after year provides absolutely fantastic and exciting matches for the fans. It provides them lots of nail-biting finishes that keeps the excitement going all around throughout the tournament. And regardless of the outcome of the tournament, we believe at the end of the day, Pakistan wins. So to all the teams, wish you all the best. May the best team win. Pakistan Zindabad. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच अब्रार मीर साहब आपकी इंसाइट्स के लिए और डेफिनेटली HBL PSL की जो खिदमात रही हैं हम सबको इकट्ठा करने के लिए पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हैं. थैंक यू सो मच. और अब मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहूँगी वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. इनको एशियन ब्रेडमैन भी कहा जाता है. इनकी कवर ड्राइव्स भी बहुत मशहूर हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान की एक नई पहचान पूरी दुनिया में हुई. मैं दावत देना चाहूँगी आप सबकी भरपूर तालियों में ज़हीर अब्बास साहब को. Thank you very much for calling me on the stage. I'm very happy to be with great players around. The thing is, this thing is not without player you can complete any tournament. And now we are asking foreign players to come and join Pakistani players. That's the best way to improve your game. And I wish IPL to do very well, as they are doing always very well for Pakistan. The team is doing very well at the moment. We are satisfied. Test cricket, ODIs, and T20s. And we all wish that Pakistan will do better than what they are doing now. I'm very happy, and I'm very happy for this tournament. Enjoy this tournament, and we will be watching you. Thank you very much. Thanks a lot. If you could just stay on stage for me here, just to, I'd like to invite Ali Naqvi, who is of course, the owner of the winning team of HBL PSL 2024 from Islamabad United. Please come up and get your blessing. And I would also like to invite Ali Tareen, owner Multan Sultan, to receive his souvenir from Zahir Abbas Sahab. I'd also like to invite Abbas Leak, who is the Chief Operating Officer of Peshawar Zalmi, to receive a souvenir as well, please. I would like to invite Atif Rana, owner Lahore Qalandar, to receive the souvenir from Zahir Abbas Sahab.
also like to invite, we've heard from him already, Abrar Amir, who's the CITO of HBL. If he could come up and receive his souvenir, please. I would also like to invite Jurji Seja, CEO ARY Network, to come and receive the souvenir. Also like to invite Ehsan Tahir, who is the CEO of Weli Technologies, to receive his souvenir as well, please. I would like to invite Rao Usman, Director Trans Group, to come and receive the souvenir. I would also like to invite Nadeem Umar Sahab from Quetta Gladiators to come and receive his souvenir. Thank you. How are you? Okay, how are you? And also like to invite Shayan Salman, the son of Salman Iqbal, who's the owner of Karachi Kings, to receive his souvenir as well. I think Shayan is the last one as well, so thank you very much. And at this stage, I'd like to thank Mr. Zahir Abbas. Put your hands together for a true legend of Pakistan cricket, for your blessing. Thank you very much, sir. And that is all from Sana Mir. She will join later on stage. So, ladies and gentlemen, the talking is done. Not for me. The anticipation is here, and the decisions are made. Just to remember you that each team has obviously a right to match in this draft, only being able to use it once, so they'll have to make sure they get that right. So decisions may have been made, but they may have to have plan 2 and plan 3 and an extra plan if that decision is taken out of their hands. So it is platinum round, and obviously the first pick is pick number 1, the platinum round, and that is Lahore Qalandars, who will have to obviously pick a foreign player in this first one. 75 seconds they will have. Just remember that teams will have to have 1 foreign player and 1 local player. A maximum of 16 players within a franchise, a minimum I should say, maximum of 20 players. So it is all set to go. Remember, this is the draft for the 2025 HBL, PSL, and we're all set to go. The weather is beautiful. There's lots of players to pick out in this key part of this draft. Key players that teams throughout these 6 franchises will look to obviously try and get on into their sides. And the likes of Karachi, who are looking to start again and looking to obviously sign 3 of these platinum players in this round. It is Lahore Qalandars who will have the first pick. So the wait is over. 75 seconds is up. And the time and the clock starts now. So the key players to look out for are the likes of David Warner, the Australian, Kane Williamson, the New Zealander, another New Zealander in Daryl Mitchell, Finn Allen and Adam Milne with his pace, Jason Holder, the big tall West Indian all-rounder, Mark Chapman from New Zealand, 2 English players, at the top of the order, Alex Hales, who knows all about HBL, PSL, Jason Roy, who spent a bit of time with the franchise, Riley Meredith with his pace, and Adam Milne. So the clock is ticking on the Lahore Qalandars. I think they are ready. They are already chosen, and their player is Shaheen Shah Afridi. Your player is. Just couldn't quite pick that one up, but you can. Daryl Mitchell. So the pick is Daryl Mitchell. We'll come back and ask him why Daryl Mitchell. Congratulations, of course. Before we go back, it is time for Platinum 2 pick, which goes to the Karachi Kings. Right next door, Shan Masood is looking at me, staring at me straight away. So the clock for Karachi Kings will start now.
already made the decision. But before we come back to you, I just want to come to Shaheen Shah Afridi. Daryl Mitchell? The mic is working. Come back to Shaheen Shah Afridi. I know Karachi, the clock is just about to start. You've got a long time. I know you've already picked. You've gone for Daryl Mitchell. Why? I think Darren Mitchell, I know there's a lot of players in this category. They all are best. That's why we pick. He performed really well in Pakistan recently, 2-3 tours, and we need that middle order batsman. So I feel he's the best option for us. And he had that ability to win the game, so that's why we picked him. A little bit of a difficult season last year. Last question I'm going to ask you now. What are you looking forward to in this 10th edition of the HBL PSL? To be honest, last year is also good for us. I know back-to-back win and then straight away 7-game loss, and then we win just one game. But as a team, we always believe each other, and we'll try to support in difficult times. So I think that's why we call our team, we are family and we are Qalandar brothers. Thanks a lot. Appreciate that. Right. Karachi Kings, you've made your decision on pick number 2 in the Platinum, and your player is? Not sure I picked that up, but I will. David Warner. Still not picking it up, but that's fine. I'm sure they can hear you at some stage, but I'm not sure. Are you picking that microphone up around? David Warner, thank you, Hassan Ali. He doesn't need it, very good. So the Platinum 2 pick for the Karachi Kings is David Warner. Now, before we come back and ask a question, I'll probably come to Shan Masood if I can in a minute. Hopefully the mic is working. We'll go to Platinum 3 pick, which is the Quetta Gladiators. And they'll be looking for a local player through the Platinum round. So hopefully the 75 seconds are on the board. David Warner is still up there from the choice. So the 75 seconds for the Quetta Gladiators on the pick will start now. Come back to the Karachi Kings and go to Shan Masood. Big name to sign. Big name to sign. One of the biggest probably in the Platinum category. Why? Looks like the mic isn't working, so I will come back to you at some stage, whether you can jump onto another mic. Working now, yes. Hassan Ali, you need a new job. You're very good at everything. I think it's working. It's not working at the moment. I can't hear you anyway. But obviously you've gone for David Warner, a man who knows all about international cricket. Maybe we could let you to use the Lahore Qalandars mic and see if that one works for you. See if you can pass that mic over or go into theirs. So, just check whether that's just going to work for you. I'll just ask a quick question. I know that the time is done for the Quetta Gladiators, but it's interesting. Just see whether this microphone works. It doesn't work, so we'll come back to you. Right, Quetta, your 75 seconds is up, and pick number 3, Platinum pick number 3, you have picked player Tom Kohler-Cadmore. Your mic isn't working, Moin Khan. Thank you and good afternoon. How are you doing? And it is being matched. So just to remind you that a match can be made, one by each franchise throughout the whole of this draft. It was Quetta Gladiators who went for Tom Kohler-Cadmore. It has been matched by Mohammed Akram and Peshawar Zalmi. So you have matched it, and you want to have that player. Mic still isn't working. So Tom Kohler-Cadmore was picked by the Quetta Gladiators. That then was matched by Peshawar Zalmi, Mohammed Akram. Is it working now? This one is working now. Brilliant. Why have you matched that? What does he bring? Well, he's been with us for past 3 years, and he fits in our team culture. So we were very clear that we're going to pick him. Brilliant. So you've gone for Tom Kohler-Cadmore. Thank you. So the 75 seconds then goes back onto the Gladiators. So another 75 seconds onto the clock, please, for the Gladiators to go for their second choice.
and that comes down to whichever one it is. So once you are ready and you've made that decision, clock is on right now. Thankfully, we did get a microphone that did work. So some interesting decisions already made in the draft. Warner has gone to Karachi. Very interesting. I will get a point from Shan Masood. Yes. But we're just waiting for the 75 seconds. Have you made your second choice? Yeah, we've already given the slip. It's Mark Chapman, please. Mark Chapman. So, Mark Chapman is the choice for the Quetta Gladiators, the New Zealander. And he will go to the Quetta Gladiators. So, Platinum 4 pick. Peshawar Zalmi will take their pick. And their 75 seconds will start now. So Mark Chapman to the Quetta Gladiators. David Warner has gone to the Karachi Kings. Interesting, there's still another 5 platinum picks in this round. Already had 1 right to match. And if you're ready, if you don't need the 75 seconds, we're happy to go. If you're ready and ready to go, in conversation, Babar Azam there and Mohammed Akram. Great to see so many former players here that are joined us, likes of Misbah ul Haq, Mohammed Yusuf, a former team player of mine. Good afternoon. So, Peshawar Zalmi, have you made your choice? They can't. They are done. They can't. While we've got time, I'm going to come back to Shan Masood. So it was a Multan Sultan's choice. That was what it was, not the Peshawar Zalmi. I apologize, it was the Multan Sultans. Have you made your choice? Yes. For our first platinum pick, I will request the first ever female fast bowling coach, Catherine Dalton, to reveal our pick. Michael Bracewell. Gone for another New Zealander. So Michael Bracewell is your pick. So congratulations on that. While you've got the microphone, could you pass that to, I'll come back to you in a minute, and pass that to Shan Masood. We'll come back to Shan Masood. So the Multan Sultans have made their choice. It's now time for Islamabad United to make their first pick in the platinum category. They'll have 75 seconds. Shadab Khan in conversations with Mike Hesson. I'm going to come back to Shan Masood. David Warner. Wow, what a player to sign. And one of the biggest names in world cricket, international and franchise, and for him to come to the league is a big signing. But for him to play for Karachi Kings is even bigger, so we're very excited. So good. Right to say that last year didn't go as planned, a little bit similar to the Kalandars. What are you going to do differently this year going into 2025, apart from win more games, obviously? Can't give secrets away. Let's assemble the team and then hopefully win with that team. But it's obviously, you've been a part of HBL PSL for a long time. It means a lot to the players. You can tell the players how much they enjoy it. And also the standard of cricket. It is up there with one of the best 2020 franchise tournaments in the world. Look, it's such a big representation for Pakistan, not just here, but on the global stage. And for our players to share that stage with the best players in the world, I think that's what's going to get Pakistan cricket forward. Thanks a lot. We'll maybe come back to you. Right. Islamabad United, have you made your choice yet? They have made their platinum choice. I'm not sure if we can pass that microphone over to Islamabad United at some stage. I'm so sorry. Thank you. Not sure that works. So the decision has been made by Islamabad United, and your platinum player will be announced by Shadab Khan. Your platinum player is? Matthew Short. Matthew Short. Matthew Short. So Matthew Short will go to Islamabad United. Choice made by captain and coach there, Mike Hesson.
We'll come back to, I want to come back to Catherine Dalton if possible. So if that, before we go to the next one, which is the Quetta Gladiators, again, they will make another choice in this platinum round. And their 75 seconds will start now. Can we get just the microphone over to the Multan Sultans? Not sure where that microphone landed. Is it still with Islamabad? Just try and get it, a chat with the Multan Sultans. Catherine, obviously it's good to see you back here again, yourself and Alex Hartley being part of the coaching staff. How much did you enjoy your first year with a franchise? I absolutely loved it, to be honest. Obviously getting to the final, we had a great run, really good team ethics and ethos behind what we're doing here. And to be the first female coach, fast bowling coach at franchise cricket, obviously alongside Alex as well, was super exciting, and I couldn't have asked for a better group to do it with. Just missed out in the end, and obviously you can see the camaraderie. Looking ahead to the 2025 edition of this tournament, what can you slightly do better? Because at the moment, things seem to be going in the right direction. I think that's exactly it. You know, we got our retentions right this year, so we've kept the core of our squad. And adding Michael Bracewell, who's going to be so good in the power play with his spin, but also attacking, aggressive in the middle order. So I think that's just going to add more depth to us. And yeah, fingers crossed, we can go one better. And what about that ground, Multan? When that ground is full, there's no better place at times to be witness to some of the best HBL, PSL games. It's electric atmosphere. Oh, it is. You can barely hear yourself think, to be honest. The fans have been amazing. It's, yeah, there's no better atmosphere than being at home at Multan, and when you win, it's even better. Thanks for now. We may come back and join you. So I think the 75 seconds is up for the Quetta Gladiators. I'm not sure whether we can get that microphone off Catherine and take it over to the Quetta Gladiators. This is their second pick. Well, first pick, actually. So, second pick, I should say. So their second pick, which is Platinum 7 pick, and they have gone for. Our Platinum pick is Fahim Ashraf. Fahim Ashraf. Big player to sign. Very good all-rounder, has been around a long time. I'm going to come back to you, and I'll speak to you, Moin Khan, about Fahim Ashraf. So the next one, Platinum 8 pick, is Karachi Kings. So once again, Karachi Kings with their second pick. They've still got another one to go. But if we could just get the microphone over to Moin Khan. I can get Moin Khan just there to have a chat. Fahim Ashraf, Moin, yeah. A very good player to have in your ranks, a good all-rounder. Yeah, of course, he's been tremendous throughout the PSL since the 9th season. And I hope he'll do well for us this year too, to win us this season. I know you as a competitor on the pitch, and myself and yourself had a few little tete-a-tete, shall we say, at times. But what does this tournament mean to you? Because what I see is a fantastic franchise tournament with some world-class players, both internationally and domestically. Well, of course, this is going to be the last season. Maybe next year we'll hold the team again. But of course, as you know, this is the last season. So every franchise wants to win this season. So as we also like to, win this time, that's why we're trying to, select good players and, the best players so far in Pakistan. Okay, thanks, Moin. We'll come back to you in a bit. I think the 75 seconds are up. Karachi are still in deep thought. Have you made your second decision, Karachi? Your platinum, number 8, or your second pick is? We've gone for the Kiwi quick, Adam Milne. Milne. Right, Adam Milne, the New Zealander fast bowler, has gone to the Karachi Kings. Very good. Excellent player in Adam Milne in Karachi Kings. So that is pick number 8. We'll go back to Quetta again, who I've got another pick. So platinum pick number 9 is the Quetta Gladiators once again.
who went for Fahim Ashraf in their previous one. We're going to go back to, I think we're going to go back to somebody we've not spoke to. Let's go back to the Zelmi again. And let's speak to Babar Azam, if he wouldn't mind having just a chat. Yes, Talk to Babar. Babar, obviously great to see you here and being part of, quite a successful franchise system in the Peshawar Zelmi. How much have you enjoyed playing HBL PSL? Yes, my second season is with the Peshawar Zelmi, and I enjoy a lot. And yes, last season we have a good season, but unfortunately we not finished well. But this year we are focused on our combination and all the things. And yes, we are looking forward to the 10th season. Tell me how important the likes of Moeim Akram are, because he's been part of the furniture for a while now in the Zelmi. How important is that man, just two from your left? Yes, very important, because he is with the Zelmi is like last 10 years almost. So yes, he knows everything. He working hard to choose the players and combinations. So yes, and we have a legendary Inzibai with us, and we are learning a lot to Inzibai. Darren Sammy won't be here next year or this year coming. How much of a loss is Darren Sammy? His exuberance, his appetite for not just 2020 cricket, but also Pakistan. He'll be a big miss, Darren Sammy. We are love a lot. We are love this Sammy company, and he loves Pakistan. When he is coming in Pakistan, he's love a lot, and he's with this Darren Sammy with sharing his dressing room. He's one of the best player, captain. So I've learned a lot. I spoke with the different things, so he helped me a lot. So yeah, we miss him this year, and later on, inshallah, he's joined us. Okay, thanks for speaking to us. Hopefully speak to you again. So I think the 75 seconds is up for the Quetta Gladiators. That is your third pick. So your third pick is? Finn Allen, please. Finn Allen. Yeah. So Finn Allen is picked for the Quetta Gladiators. Okay. Congratulations on that. There isn't any rights to match. We can't see them. So Finn Allen is their third and final pick in the Platinum category. The next one is the final one in the Platinum category. That is, once again, the Karachi Kings. So Platinum 10, Karachi Kings is next up. The final in this category. So it'll be their third and final one. 75 seconds is on the board, and we will hit the stopwatch right now. I know you're ready, but I just want to go back to the Quetta Gladiators just for another little chat, if possible. Yes, Don. Obviously, you had the right to match. How difficult is that as a franchise when you get that right to match? Do you have to slightly change tack and go for perhaps that second option? Yes, of course. You know, we were basically missing a keeper batsman. That's why we went for TKC. He's been with us. We picked him about 8 years ago. And but good luck to Peshawar. They've retained him. And we would be, you know, Finn Allen is another good pick, a great hitter of the ball, and he's got a strike rate of over 170. So we're very happy with Finn Allen, and of course, losing TKC was a setback for us. Yes. So going on into the obviously deeper into the rounds and the silvers and the emerging players, at the moment you feel you're in a good place. You may have missed out slightly, but in a good place going into the silver and diamond categories. Yes, of course, you don't get everything, you know, when you come here, you're prepared for plan A, plan B, plan C. But of course, the plan A didn't work, so we had to go to plan B. So, alhamdulillah, it's worked well. Yes, thank you. Thanks a lot. We'll speak to you soon. Right, I think the decision was made quite a long while ago by Karachi. It is the final pick. It is pick number 10 for the Karachi Kings. It is their third platinum pick, and you have gone for? So we've decided to use our wild card, and we're going with Abbas Afridi. You've gone for your wild card? Sorry, I can't pick you up. up. And we've chosen Abbas Afridi. Abbas Afridi. Okay. Congratulations. So that is their third and final pick. While you're there, I might just go back to Shan Masood or even Hassan Ali.
maybe have a word with Hassan Ali, a very experienced cricketer. Hassan, how much do you enjoy playing HBL, PSL? You have pride on your chest every time you take that wicket and that celebration. Thank you so much for having me. It's been 10 years I'm playing HBL, PSL, and I would love to share. The thing is, the HBL, PSL give me everything. I still remember the Zalmi picked me up in emerging player, and then I played for them. Then I moved to Islamabad United, and then I'm playing for the Karachi King, and it's been a beautiful journey for me. Thanks a lot. Pleasure to have you here. Pleasure to have all the players here and the players. So, the Platinum round is done and dusted. The 10 picks have been made. That's it from down here. Back up to you in the studio, Sikandar. Thank you so much. Here we are now, just looking at what has happened in that opening round, the Platinum round, and some very, very big names out there. And as we discussed earlier, क्योंकि ये window ऐसा है इस साल 10वें एडिशन में HBL PSL के कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही, तो इसलिए प्लेयर अवेलेबिलिटी काफ़ी बड़ी है, जो बुफे है, सिलेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक अच्छी चीज़ भी है, और शायद टीम्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किसको लें और किसको ना लें। बहुत सारे नाम, डेविड वार्नर, डैरल मिचेल हैं, मार्क चैपमैन है, एडम मिल्न है, फ़हीम अशरफ, इस तरह के नाम जो कि प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किए गए। मेरे साथ सना एक बार फिर आ चुकी हैं और उनके बराबर में बैठे हैं अजहर अली, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी हैं, और साथ ही साथ आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, और यूथ डेवलपमेंट के भी हेड हैं। अजहर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों से ही मैं सवाल करूँगा, स्टार्ट करते हैं आपसे कि ये राउंड जो अभी हुआ प्लैटिनम का, काफ़ी नए नए नाम देखने को मिले हैं जो कि अवेलेबल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि और कहीं क्रिकेट नहीं हो रही है, तो पूरे थ्रू आउट द एडिशन ऑफ HBL PSL के इनकी अवेलेबिलिटी है। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है, जिसके लिए आई थिंक एक तो अच्छी बात भी है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इनके पास, टीम्स के पास, लेकिन अगेन फिर ऐसे नाम मिस भी होंगे उनको, जिससे वो बाद में शायद सेकंड थॉट देंगे, यार ये मिस हो गया हमसे। लेकिन अगेन जो भी टीम अपने प्लेयर्स पिक करेगी, उनका एक पूरा प्लान होगा, उनका बैलेंस देखते हुए टीम को, कि हाँ वो कैसा बैलेंस देखना चाह रहे हैं, कौन से प्लेयर उन्होंने रिटेन किए हुए हैं। तो आई थिंक उसको देखते हुए उन्होंने जो अपनी पहली 3 से 4 पिक्स हैं वो ऑलमोस्ट उनकी डन ही होंगी अपने अपने कम्बिनेशन को देखते हुए। तो आई थिंक अब ये देखना पड़ेगा जब एंड पे जब कम्बिनेशन पूरा बनेगा तो कौन सी टीम सबसे ज़्यादा खुश उठ के यहाँ से जाती है। अच्छा, टीमों ने भी अपना अपना एक तरीका है उनका, जिनका कोर है, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड का अपना एक तरीका है, वो हार्ड हिटिंग बैटर्स लेते हैं ऑल द वे टू नंबर 7 and 8। इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रखते हैं, देव गॉट सम फायर पावर एंड स्पिन। तो आज की पहली, यानी इस सीज़न की पहली पिक जो रही है हमारे सामने, वो रही है डैरल मिचेल, एक बड़ा नाम है, और जैसे कि अभी कहा भी था उनके एक टीम मेंबर ने कि पाकिस्तान में रिसेंट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, ही वाज वेरी गुड, फॉर्मेट डिफरेंट था, यस, सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ पिक, इन टर्म्स ऑफ अ फिनिशर सो टू स्पीक इन मिडिल ऑर्डर। एब्सोल्युटली। और डैरल मिचेल की अच्छी चीज़ ये है कि पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें, 2-3 सालों में अगर देखें, तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। हम ज़्यादा उनको शुरू में बात सोचते थे कि लॉन्गर फॉर्मेट रेड बॉल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी, पर वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, उन्होंने उसमें अपने स्ट्राइक रेट को बहुत इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से वो इस वक्त किसी भी टीम के लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। और फिर इस तरह का प्लेयर जो केन विलियमसन के साथ इतना टाइम गुजारा हो, एक न्यूजीलैंड की ऐसी टीम में टाइम गुजारा हो, तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज लेकर भी अपने साथ आता है, जिससे जिस भी टीम के ड्रेसिंग रूम को वो शेयर करेंगे, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। अजहर, रिसेंटली पाकिस्तान में जब न्यूजीलैंड आया था, मार्क चैपमैन एक नाम सामने आया जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में बड़ी शानदार बैटिंग की, और ये एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा एज अ क्रिकेटर कि क्या T20 में एक एंकर का रोल है विद द बैट? नहीं, चैपमैन आई थिंक उनका जो मिडिल ऑर्डर में एक तो इम्पैक्ट प्लेयर है, ऑब्वियसली इनिंग को लेके चलना भी जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके स्ट्राइक रेट्स भी अगर आप देखें तो इवन 50 ओवर में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त पिक है। न्यूजीलैंडर्स आई थिंक काफ़ी अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं, तो आई थिंक ये बड़ा इजी होगा, जो भी टीम में वो जाएंगे बड़ी जल्दी जेल इन हो जाएंगे। तो आई थिंक 3 तो न्यूजीलैंडर्स हमें, बल्कि 4 न्यूजीलैंडर्स दिख रहे हैं इस पहले राउंड में। तो आई थिंक काफ़ी अवेलेबिलिटी प्लेयर्स की होने की वजह से आई थिंक काफ़ी प्लेयर्स अब ऑल राउंड वर्ल्ड से पाकिस्तान PSL में आएंगे। तो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त, आई थिंक सब टीम्स के लिए बहुत अच्छा है, और एज ए लीग हमारे लिए बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को हमें मिलेगी।
कुछ नाम ऐसे होते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में या लीग क्रिकेट में जो कि कहते हैं ना टेलर मेड है, बिल्कुल ऐसे वो हार्ड हिटिंग गन्स होते हैं। टीकेसी, टॉम कॉलर कैडमोर एक ऐसा नाम है जो कि अराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं और आई थिंक उनकी पहचान उनकी लीग ज़्यादा है। एडजस्ट वेरी क्विकली इनटू अ टीम, इनटू अ फ्रेंचाइज एंड ही अंडरस्टैंड्स हिज रोल। और उनकी वैल्यू इसी बात से अंदाज़ा है कि 2 टीम्स इस दफ़ा भी टक्कर में आ गई थी और पेशावर ज़ल्मी ने अपना राइट टू मैच का इस पे अप्लाई किया है, जो राइट है, और इसी वजह से उनको रख लिया, रिटेन कर लिया है वापस एक तरह से। और बहुत इंपॉर्टेंट पिक थी मेरे ख्याल से। टॉम कॉलर कैडमोर टॉप ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका सारा का सारा रुझान लीग क्रिकेट के ऊपर है। अगर आप देखें दुनिया में कोई लीग हो, T10 हो, T20 हो, वो हर तरह की लीग खेलते हैं और वो जो एक एक्सपीरियंस है लीग का वो बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं टॉम कॉलर कैडमोर। एक्सपीरियंस का जिक्र किया सना ने तो एक बहुत बड़ा नाम है अक्रॉस फॉर्मेट्स, डेविड वार्नर, जिनकी अवेलेबिलिटी थी और उनको पिक किया है कराची किंग्स ने। डेविड वार्नर अपने आप में एक ऑफ कोर्स एक पावर हाउस है। उनकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में एक और एडवांटेज भी होगी इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस, व्हाट ही कैन ब्रिंग टू ऑन द टेबल। जी बिल्कुल, और आई थिंक कि डेविड वार्नर किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट है और कराची किंग्स की पीछे रीसेंट पास में परफॉर्मेंसेस को अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो ड्रेसिंग रूम का माहौल उठाएं और टीम को ग्राउंड के अंदर भी उठा के रखें। ज़ाहिर बात है जब इतनी कंटिन्यूस लॉस से आप गुजर रहे होते हैं बड़ा मुश्किल होता है और एक फ्रेश फेसेस आने से ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, बड़े इवेंट्स जीत चुका है, वो जब आएगा एक विनिंग एटीट्यूड लेके आएगा तो आई एम श्योर कि कराची किंग्स को बहुत ज़्यादा उसके आने से हेल्प भी होगी। और स्पेशली जो प्लेयर्स उनके साथ खेलेंगे, जितने भी प्लेयर्स बड़े नाम हैं, ऑल्दो कि वो अपनी क्रिकेट का पीक गुजार भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ काम जब आप एक महीना गुजारेंगे उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाएगा। और इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कराची किंग्स से शोएब मलिक अभी रिलीज़ हुए, तो जो एक एक्सपीरियंस का फैक्टर है, अब कराची किंग्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि वो मिडिल ऑर्डर में किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करें, क्योंकि टॉप में डेविड वार्नर। Amazing person. I think Qalandar philosophy and what we believe in, the values, I think Darren has a similar. He is somebody who inspire. He can be very, very inspiring for all the youngster we have. He's somebody who stays back, let the player grow. I think this is the culture we have in Qalandars, and we would like our superstars and our players to grow in this brand. And I think he is a perfect match for that. And he was with us in Guyana in Global Super League, and we had a wonderful time. And he brings a lot of experience, and I think our fast bowler especially is going to learn a lot from him. And I can assure you now, Darren Goff, who's added to your bowling attack with Shaheen Shah Afridi and Zaman Khan, wow. He'll tell you how good he was, don't worry, I know Darren Goff. Right, I think the timer is done for the Zelmi and their final pick. And the final pick in the diamond round, Mohammad Akram, diamond pick number 5 for the Zelmi is? The fast bowler, Muhammad Ali from Pakistan. That is fifth pick. And the final pick in the diamond round, and it is Mohammad Ali. He has been picked for the Zelmi, and that is the diamond round done and dusted. I'll just quickly come to you, Mohammad Akram, if possible. Tell us why. We do need a fast bowler, and he's been in prolific form in recent past. So he's experienced, so we need someone to lead our bowling attack. So that's why Muhammad Ali. We've been waiting for him. We're lucky to get him. So pace and pace, I like it. Yeah, me and you as well. If only I had pace. Right, that's all from down here, back up to the studio with you, Sikandar. ओके तो ये सिलसिला जारी रहेगा और डायमंड राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा और बड़ी शानदार बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्स हुई हैं। लेकिन एक हैरत की बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कर रहा था डिस्कशन अपने गेस्ट के साथ कि इनिशियल जो आप देख रहे थे इनिशियल सीजन्स ऑफ HBL PSL, वहाँ पे हम देखते थे कि ज़्यादा फोकस फॉरेन प्लेयर्स का बैटर्स पे होता था कि उनको लेके आया जाए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स वैसे ही बहुत सारे मौजूद थे पाकिस्तान में। बट नाउ आई सी जेसन होल्डर देयर, कॉबिन बॉश देयर, मोहम्मद अली हैज़ बीन पिक्ड, ऑफ कोर्स इट्स इंटरेस्टिंग। एंड मोर इंटरेस्टिंग इज माई न्यू गेस्ट. To my right, starting off with a very young, dynamic captain of Pakistan T20 side, Fatima Sana with me. और उनके बराबर बैठे हुए हैं. Of course, he needs no introduction. Brilliant batter for Pakistan, and he's provided his services for continuously almost a decade in Test match cricket. Asad Shafiq is here with us. Currently, he's a selector for both men and women. So,
वेलकम टू यू गाइस। HBL PSL का 10वां एडिशन है और बहुत सारी शानदार पिक्स हो रही हैं। शानदार जगह है। मैं यहाँ थोड़ी देर पहले बैठा हुआ सोच रहा था कि जब बादशाह बैठते होंगे यहाँ पे, शाम की चाय पी रहे होंगे, यही वाली फील होती होगी। मैं भी यही सोच रहा था ऊपर आते हुए कि बादशाह अगर लिफ्ट लगवा लेते यहाँ पे तो और अच्छा होता। नहीं, ऑब्वियसली HBL PSL इज़ समथिंग कि पूरी पाकिस्तान की कौम इसका वेट कर रही होती है। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स जो है, अच्छा इस साल क्या होगा, कौन सा प्लेयर किस टीम में होगा, तो सब बहुत जो है वो ईगरली वेट कर रहे होते हैं इसका। और जो मेन मेरे हिसाब से ये बेनिफिट करती है वो यंग प्लेयर्स को करती है। जो ऐसे प्लेयर्स जो कि बिल्कुल अभी नए आ रहे होते हैं पाकिस्तान के PCB के सेटअप में, और ऐसे प्लेयर जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं ऐसे प्लेयर्स के साथ जो कि वेल इस्टेब्लिश होते हैं, तो उनकी जो लर्निंग्स हैं वो इतनी क्विक होती हैं जो कि आपको अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखें तो बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो लर्निंग प्रोसेस उनका बहुत तेज़ हो जाता है इससे। लर्निंग प्रोसेस का जिक्र किया फातिमा। लर्निंग प्रोसेस चाहे मेन हो या विमेन क्रिकेट हो, फॉर्मूला तो सेम ही है। वे आप डिफरेंट प्लेयर्स को, चाहे वो अपोजिशन की क्यों ना हो, उनके मैनरिज्म्स देख के किस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, एक एडवांटेज मिलता है, आप सीखते हैं उनसे भी। HBL PSL को आप देख रही होंगी काफ़ी सालों से, और दिल भी चाहता होगा कि होना चाहिए विमेन का भी, होगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बट इट्स एन एक्साइटिंग लीग इज़न्ट इट, जब आप ये साल का ये महीना आता है एंड ऑल दीज प्लेयर्स गेट टुगेदर। अभी तक आपको कैसी लग रही है पिक्स और जो प्लेयर्स आ रहे हैं नए नए? जैसे आपने बात करी कि ये यंग टैलेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आके अपने आप के स्किल्स शो करते हैं, और फ्रेंचाइज़ का यही अच्छी चीज़ है कि PCB से आने से पहले फ्रेंचाइज़ में आना और अपने आप को शो करना, तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लड़कों के लिए। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी हम वुमेंस में भी चाहते हैं कि जितना वुमेंस में आए उतना अच्छा है। और ऑब्वियसली मैंने अपनी पूरी यंग क्रिकेट जितनी भी अभी तक खेली है PSL देखते हुए ही खेली है, तो हमारे लिए एक अच्छी मोटिवेशन है इस तरह का PSL होना। हम चाहते हैं कि इसी तरह वुमेंस की भी हो। आइए आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाते हैं। डायमंड पिक्स अभी हुई हैं और इसमें क्या सिलसिला जो है वो अभी तक चला है। पेशावर ज़ल्मी की हम बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने इस राउंड के अंदर जो पिक किया है वो ऑफ कोर्स मोहम्मद हारिस, कॉबिन बॉश और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीज़न में मुल्तान सुल्तान के लिए, स्पेशली जब उनके मैचेस मुल्तान में हो रहे थे। इट्स एन इंटरेस्टिंग लीव बाय मुल्तान सुल्तान, बट आई थिंक अ वेरी हैंडी प्लेयर इन मोहम्मद अली। जी बिल्कुल, अली के बारे में यही बात करना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्स्ट क्लास में उसके साथ खेलता रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से। तो फर्स्ट क्लास में तो हम सबको पता है कि ही कैन डू वंडर्स, लेकिन अपनी स्किल्स जो उसने डेवलप की हैं वाइट बॉल में, वनडे में भी, 2020 में भी, तो वो फ़ेनोमिनल हैं। पिछले 2-3 साल से जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, अभी चैम्पियंस कप भी हुआ था उसमें भी जो उसने बॉलिंग की, तो मेरा ख्याल है कि एज अ फास्ट बॉलर उसकी जो लर्निंग्स हैं, जितने पिछले 2-3 साल में उसने चीज़ें सीख के, स्किल सीख के एग्जीक्यूट किया उनको, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है कि ऐसा बॉलर जो कि आपको हर फॉर्मेट में इक्वली कंट्रीब्यूट करके दे, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। डायमंड पिक्स का जिक्र हो रहा है तो आपको एक साथ ही दिखाते हैं कि किस किस टीम ने किस किस प्लेयर को यहाँ पर पिक किया है, जिसमें मैं आपको वैसे ही अब सरसरी तौर पे बताऊं तो कराची किंग्स ने खुशदिल शाह को लिया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर आप लेते हैं जेसन होल्डर फास्ट बॉलर उन्होंने लिए हैं। उसके अलावा उनकी जो डायमंड की अदर पिक्स हैं इसमें इमाद वसीम और आज़म खान है, और ऑफ कोर्स जेसन होल्डर एक इंटरेस्टिंग नेम है। मैंने अपनी डिस्कशन में पहले ही कहा था कि फॉरेन फास्ट बॉलर्स का इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब एडम मिल्न हमने देखा प्लैटिनम कैटेगरी में फास्ट बॉलर्स में, और कॉबिन बॉश की बात हुई, और अब ये जेसन होल्डर। सो इंटरेस्टिंग किसी के फास्ट बॉलर्स भी बाहर से लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलर की क्रीम कही जाती है कि पाकिस्तान से ही सारे फास्ट बॉलर्स निकलते हैं, तो जिस तरह बाहर से भी आके वो लोग खेलेंगे तो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए भी कि वो उनसे जितना लर्न कर सकें करें, तो ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए। कराची किंग्स आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और इनकी डायमंड पिक्स में ऑफ कोर्स हसन अली लास्ट ईयर इन्होंने फ्रेंचाइज को ज्वाइन किया। जेम्स विंस काफ़ी अरसे से इनके साथ हैं, टॉप ऑर्डर में बहुत रिलाई करता है कराची किंग्स इन पर। और एक और अच्छी पिक खुशदिल शाह, जो कि कहते हैं ना कि T20 के कंप्लीट पैकेज हैं, वो फील्डर, बॉलर एंड ऑफ कोर्स एज अ बैटर तो हम उनको जानते हैं कितने पावर हाउस हैं। अगली जो डायमंड पिक्स हैं दूसरी फ्रेंचाइज की, जिसमें लाहौर कलंदर शामिल है। लाहौर कलंदर की इस राउंड के अंदर हारिस रऊफ ऑफ कोर्स डायमंड पिक में, आज़म खान, वेल दैट्स नॉट आज़म खान, दैट्स सिकंदर रज़ा, एंड देन कुरसाल परेरा द विकेट कीपर बैटर हु इज़ बीन द न्यू इंक्लूजन। तो ये नाम बहुत सारे आ रहे हैं, आपको ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, इनको दुनिया जानती है कि इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और किस तरह का ये
गेम ला सकते हैं ऑन द टेबल। असल मुश्किल चीज़ होती होगी बैलेंस क्रिएट करना किसी एक फ्रेंचाइज का, क्योंकि किसी भी प्लेयर को जानबूझ के कोई छोड़ता नहीं, लेकिन ड्राफ्ट के सर्टन ऐसे कैटेगरीज और ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ आप मजबूर हो जाते हैं कभी कभार। ऑब्वियसली जो टीम के साथ उनकी सारी मैनेजमेंट है, जो उनके थिंक टैंक हैं, तो इसके पीछे उनका पूरा प्रोसेस होता होगा, पूरा होमवर्क होता होगा कि किस प्लेयर को हमने रखना है, किस प्लेयर को हमने छोड़ना है। और जो आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, तो फास्ट बॉलर देखें, हमारे जो ग्राउंड की डायमेंशंस हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं, उनमें स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। स्पेशली वाइट बॉल की जो हम लोग पिचेस बनाते हैं, तो ज़्यादातर टीमें यही कोशिश करती हैं कि उनकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ ऐसी हो कि आखिरी के 4-5 ओवर्स जो हैं वो फास्ट बॉलर से ही, ऐसे फास्ट बॉलर उनके पास हों जिनकी यॉर्कर्स और स्लो वन जो है वो टॉप कैटेगरी की हों। तो मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर जो इंटरनेशनल इस दफ़ा ज़्यादा आ रहे हैं और टीम ज़्यादा पिक कर रही हैं, इसके पीछे उनकी ये सोच भी हो सकती है। फातिमा सना से पूछते हैं, आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट फ्रेंचाइज कौन सी है? मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान। कोई ख़ास वजह है? ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं उनके प्लेयर से, उनकी क्रिकेट अच्छी लगती है, क्या वजह है? लास्ट टाइम मैंने PSL देखा प्रॉपर, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी टीम। और एक मुल्तान सुल्तान और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी टीम थी जिनको देख के लग रहा था कि मतलब उनको देख देख के फीलिंग आ रही थी कि हमारी भी इस तरह ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उनका ड्रेसिंग रूम का सिनेरियो था सारा, क्योंकि एज अ ब्रांड एम्बेसडर मुल्तान के मैंने वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था तो देख ये वजह है ना। ओके, आए मुल्तान सुल्तान का जिक्र किया तो उनकी भी पिक्स देखते हैं इस साल की, जो कि HBL PSL का 10th एडिशन है। David Willey, of course, that fast bowler, and has done well for them. Very clever bowler, I must say, in the conditions. Iftikhar Ahmed और उस्मान खान, जो कि टॉप ऑर्डर बैटर है, अच्छी इनकी बैलेंस है। इनका भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जो यूजुअली आपको प्लेऑफ्स में दिखेंगे ही। इसका मतलब उनका प्रोसेस और कंसिस्टेंसी है, कुछ कर रहे हैं काफ़ी। आई थिंक सबसे ज़्यादा फाइनल खेला है मुल्तान सुल्तान। जी ऑब्वियसली जो इनका कोर है ये सो कभी भी जाने नहीं देते। जिस तरह उस्मान को भी आप देखें कि उस्मान भी इनकी तरफ से पिछले 2-3 साल से खेल रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, और उसके बाद ही उसने पाकिस्तान टीम में भी जगह बनाई। तो ऑब्वियसली देखें टीम इसमें एज अ फैमिली एक चीज़ जो है आपकी जो फील होती है किसी भी फ्रेंचाइज में अगर आप जाएँ, और अगर आपको जो है वो कंफर्ट जोन आपका मिले, तो एज अ प्लेयर आपको अपनी स्किल्स एग्जीक्यूट करने में बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि कुछ फ्रेंचाइज ऐसी होती हैं जो कि आपकी शायद एबिलिटी पे उस तरह ट्रस्ट नहीं कर रही होती। कुछ फ्रेंचाइज ऐसी होती हैं जो कि आपको फ्री हैंड देती हैं कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, वी आर विद यू, ये आपके 8 मैच हैं, 10 मैच हैं, आप इसमें जो भी करें आपने मैच खेलने ही खेलने हैं। तो प्लेयर को फ्रीडम देना जो है ना, वो मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट में, क्योंकि इस फॉर्मेट में हर दूसरे मैच में प्लेयर नहीं परफॉर्म करता, उसको ऐसे फॉर्मेट में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन जब वो परफॉर्म करता है तो फिर वो मैच को एक तरफ कर देता है। भाई हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पिक्स की। एक और फ्रेंचाइज है जिसको अगर आप ऑन पेपर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी, शायद उसको फील्ड में रीसेंट टाइम से रेप्लिकेट नहीं कर पाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स UAE में जब था HBL PSL तो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अब इनकी पिक्स इस बार की डायमंड पिक्स हैं मोहम्मद आमिर, ऑफ कोर्स, जिन्होंने इनको रिसेंटली ज्वाइन किया है, और अबरार अहमद, ऑफ कोर्स, ही इज़ बीन अ रेगुलर मेंबर ऑफ द क्वेटा ग्लैडिएटर्स, एंड रायली रूसो। दैट इज़ वन गुड पिक। आई वाज फ्लैबरगास्टेड जब मैंने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने इनको जाने दिया। इनका रोल बहुत अहम है और इनको कप्तानी भी दी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव एंड ही टुक इट एंड ग्रैब्ड इट बोथ हैंड्स। रायली रूसो का गेम पसंद होगा आपको, मुल्तान से चले गए इसलिए आप नाराज़ नहीं होना। नहीं ऑब्वियसली प्लेयर की रिस्पेक्ट पहले, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ मुल्तान में खेला था तो अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, सारी चीज़ थी, बट वही वाली असद भाई वाली बात कि वो अपने कोर को रखते हैं, तो इसीलिए उनकी टीम इस जगह पर है। तो आई थिंक यही इस टीम की वो खासियत है। और सिलेक्शंस भी हम जो देख रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी जब पूरी शाम या इवनिंग ख़त्म होगी तो जब 20 पिक्स सब टीम्स की आ जाएंगी तो एक बैलेंस नज़र आ जाएगा। हमने थोड़ी देर पहले अजहर के साथ भी बात की थी, असद के साथ भी यही बोलूँगा कि कोई भी लीग जो कहीं दुनिया में हो रही होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि आपका अपना लोकल टैलेंट सामने आए, नए लड़के सामने आए, और ऐसे बहुत से नाम आए हैं जो कि कुछ पाकिस्तान खेल भी गए हैं और कुछ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एंड एनी पर्टिकुलर प्लेयर दैट हैज़ इंटरेस्टेड यू अ लॉट एज बीइंग अ सिलेक्टर, नए लड़कों में जो आपको लगता है पोटेंशियल है? देखिए बिल्कुल, जो इसका मेन मकसद मुझे भी जो समझ में आता है वो प्लेयर की डेवलपमेंट है, कि उसकी प्लेयर की डेवलपमेंट ऐसे प्लेयर्स के साथ जो कि वेल इस्टेब्लिश हैं, ऐसे प्लेयर्स के साथ जब आपका यंग बच्चा ड्रेसिंग रूम शेयर करता है तो उसकी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होती है। देखिए काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि HBL PSL से जो है वो प्रोमिनेंट हुए और फिर पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेले, एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। जिस तरह जादाद उसकी आपकी जो है वो प्राइम एग्जांपल है। लास्ट ईयर उसने जो है डोमेस्टिक खेला, फिर उसके बाद PSL खेला, उसमें परफॉर्म किया। तो ऑब्वियसली जब ऐसे स्टेज पे
इतने प्रेशर सिचुएशंस में आप आते हैं, मैच जितवाते हैं, तो सेलेक्टर्स की आई को आप कैच करते हैं। तो आई होप इस साल भी ऐसे प्लेयर्स आपको दिखेंगे जो कि आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। Okay, Asad, thank you so much for joining us, and Fatman, best of luck to you, and we'll see you in the Women's HBL PSL very, very soon. Don't worry about that. Time for us to head down to the main stage and get on with that new category. थैंक यू सो मच सिकंदर। और दो कैटेगरीज ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंचाइजीज से, कैन यू प्लीज़ टेक योर सीट्स, वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द गोल्ड कैटेगरी। वी आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू कम बैक टू योर सीट्स। प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी तो कंप्लीट हो चुकी है, हम गोल्ड कैटेगरी का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो पहली पिक है इसमें गोल्ड कैटेगरी में, वो पेशावर ज़ल्मी के पास है। अगर आप लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। अब टीम की शक्ल बनती जा रही है और अब पिक और ज़्यादा करना मुश्किल हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी, आप लोगों की पहली पिक का टाइम स्टार्ट होता है अब। $75 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। और इस कैटेगरी में बहुत ज़बरदस्त नाम हैं। अगर लोकल प्लेयर्स की बात करें तो हार्ड हिटिंग बैटर आसिफ अली मौजूद हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की बात करें तो डार्सी शॉट, बेन मैकडर्मिट। और बॉलर्स की बात करें, फास्ट बॉलिंग की हमने बात की, सलमान इरशाद, चाहे नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, मिडल ओवर्स हो, यॉर्कर, स्लिंगी एक्शन, आमिर जमाल भी मौजूद हैं। आयरिश स्टार हैरी टेक्टर इज़ ऑल्सो अवेलेबल, कीवी पेसर नील वैगनर। और टाइम ख़त्म होता है पेशावर ज़ल्मी का। आर यू रेडी विद योर पिक? हम अपना वाइल्ड कार्ड खेल रहे हैं, पाकिस्तानी यंग बैट्समैन अब्दुस समद। थैंक यू सो मच जी। वाइल्ड कार्ड खेला गया है यहाँ पर पहली दफ़ा इस ड्राफ्ट के अंदर पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, और उनकी पहली पिक रही है गोल्ड कैटेगरी में अब्दुस समद। पाकिस्तानी ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, अपने आप को काफ़ी उस लेवल पर ये लेके जा रहे हैं। बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं, बॉलिंग बहुत अच्छे, स्ट्राइक रेट आपके सामने है, 146 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री। नेक्स्ट पिक है मुल्तान सुल्तान की, पिक नंबर 2 इन गोल्ड कैटेगरी। हमें माइक ज़रूर चाहिए होगा वहाँ पर। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब हम आएंगे पेशावर ज़ल्मी के पास दोबारा। अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें पेशावर ज़ल्मी के कैंप से अब्दुस समद को पिक करने की क्या वजह बनी? जब भी कोई यंगस्टर नज़र आता है डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो मेरा ख्याल है हर फ्रेंचाइज चाह रही होती है कि वो उनके पास जाए। लकीली हमारी पहली पिक थी और हमारे पास वाइल्ड कार्ड भी मौजूद है। आई एम श्योर कि ये इस तरह का बैट्समैन है जिसको कोई भी 6 फ्रेंचाइज़ों में से लेने के लिए तैयार होगा। ही इज़ यंग अप एंड कमिंग टैलेंट, और इस तरह का पाकिस्तान को ज़रूरत है। इंशाल्लाह ग्रूम करेंगे, हम उसके साथ काम करेंगे। और अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी फॉलो कर रहा था, तो वो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए वो फिट इन करता है हमारी नंबर 6 पोजीशन पे। और आपने ऑब्वियसली आमिर जमाल को भी रिलीज़ किया, वही उसी तरह के रोल में इनको देखेंगे या डिफरेंट रोल में आप समझते हैं? अब्दुस समद बैट्समैन है जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता है, लेकिन मेनली इसको हम एक बैट्समैन के रोल में देखते हैं, जो पाकिस्तान को ज़रूरत है एक पिंच हिटर की, उस रोल में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। और मुल्तान सुल्तान के पास अब थोड़ा ही टाइम रह चुका है अपनी गोल्ड पिक की, और रेडी हैं अली तरीन। हम अपने गोल्ड पिक के लिए एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं हमारे टेबल पे, क्योंकि ये मुल्तान सुल्तान की गोल्ड पिक है, तो सिर्फ अप्रोप्रिएट है कि हम इनवाइट करें पाकिस्तान का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम साहब और उनके कोच सलमान भट्ट साहब। और अरशद नदीम ने हमारे लिए हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। आप सबको पता है जैवलिन में ओलंपिक का गोल्ड हमारे लिए हासिल किया, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया वहाँ पर। हम सब के लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट है, इनका वार्म वेलकम कीजिए।
आपको बहुत वार्म वेलकम अरशद नदीम साहब, आपके कोच को भी बहुत वेलकम और थैंक यू सो मच, इतना आपने हमारा नाम रोशन किया है पाकिस्तान का। इस प्लेटफॉर्म से भी हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और पिक भी आप ही अनाउंस करेंगे तो प्लीज़ अनाउंस कर दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सबका और HBL PSL का जो मसला इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होता है। और इसी तरह हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और जो ये HBL PSL हो रहा है इनको भी कामयाब करे। और जो अभी हमने नाम गोल्डन नाम जो सेलेक्ट किया है वो मोहम्मद हसनैन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और अरशद नदीम साहब, आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और 4 चांद लगा दिए डेफिनेटली हमारे ड्राफ्ट को यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कॉन्फर्मेशन ये है कि गोल्ड पिक नंबर 2 मुल्तान सुल्तान के लिए मोहम्मद हसनैन। हम देख रहे हैं फास्ट बॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है हर जगह पर। अब पिक नंबर 3 गोल्ड कैटेगरी की जो पिक नंबर 3 है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुल्तान सुल्तान, अगर आप लोग थोड़ा सा बता सकें जो ओवरऑल प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है, इसके पीछे सिलेक्शन के पीछे, इस ख़ास पिक के पीछे क्या प्रोसेस रहा? जी शुक्रिया। असल में हमारी कुछ पिक्स इस तरह की थी कि कुछ हमें मजबूरन कुछ अपने प्लेयर्स छोड़ने पड़े, लेकिन चूँकि हमें फास्ट बॉलर चाहिए था और हसनैन जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और तेज़ बॉलिंग कर रहा है, तो हमारे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट वो है इस वक्त जो हमारे लिए मिडल में और डेथ में बॉलिंग करेगा। और अब्दुर्रहमान साहब, आपकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल डोमेस्टिक पे बड़ी नज़र रखते हैं। अब आप कंपेयर करें, आसिफ आफरीदी को भी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने चांस दिया, शाहनवाज धानी को बड़ा ज़बरदस्त चांस दिया। अभी सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स अब तक पिक कर चुके हैं उसमें क्या समझते हैं किस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है? देखिए अभी तक तो हमने 2 ही प्लेयर पिक किए हैं, एक ओवरसीज़ ब्रेसवेल को और हसनैन को। तो ब्रेसवेल जो है वो पावर प्ले के बेस्ट बॉलर हैं और मिडल में वो बैटिंग करते हैं, हमें ज़रूरत भी थी मिडल ऑर्डर की एक। और हसनैन जो हैं वो जब से वो आए हैं वापस तो बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। तो अब आगे जो हमारी पिक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको इंशाल्लाह अगर वो हमें अच्छी मिल जाती हैं तो हमारी एक अच्छी टीम बनती जा रही है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी टाइम ख़त्म होता है, आप लोग रेडी हैं अपनी पिक के साथ? Yes, we've chosen the Australian all-rounder Ben Dwarshuis because we've always preferred all-rounders in our team and adds balance to our side. So the pick for Islamabad United has been confirmed. It's an Australian all-rounder this time. And the confirmation is Ben Dwarshuis. Very healthy strike rate, 136 and 175 wickets to go with that. For pick number 4, अब हमें जाना होगा कराची किंग्स की तरफ। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब हम आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक बार फिर वापस। रेहान भाई, हसन चीमा तो अब है नहीं, हम आपसे ही सारी बातें पूछेंगे। जो स्ट्रैटेजी आप लोगों की रही है, आपके कोच ने कहा हम कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे, वो क्या डिफरेंट होगा इस सीज़न में? आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले साल जो आपने डिस्पाइट विनिंग द टाइटल आपको नज़र आता है हमने कहीं गलतियाँ की हैं, तो इस साल स्क्वाड के अंदर वो गलतियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली द बिगेस्ट फैक्टर इज़ फ़हीम अशरफ, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टार प्लेयर है इतने साल, और इस साल वो चला गया। बेस्ट ऑफ लक टू हिम एंड गुड फॉर हिम कि वो प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर पिक हुआ है। सो वी हैड टू कवर दैट एंड ऑल्सो सी के सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है और उस टाइम पे सीज़न में पाकिस्तान में कंडीशंस क्या होती हैं, उस मुताबिक टीम पिक करनी है। सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि बेस्ट प्लेयर कौन सा अवेलेबल है, इट्स नेसेसरी कि आपकी टीम में कहाँ पे कौन सा प्लेयर फिट होता है। बहुत ज़बरदस्त ओवरऑल अच्छी पिक आप लोगों की रही है और हमारे पास टाइम अब पूरा हो चुका है कराची किंग्स के लिए। आर यू रेडी विद योर पिक? यस, हम जा रहे हैं गोल्ड में आमिर जमाल के साथ।
अच्छा, इरफान न्याजी पिक अनाउंस कर रहे हैं और पिक की कॉन्फर्मेशन है आमिर जमाल for Karachi Kings from Peshawar Zalmi to now Karachi Kings. Amir Jamal makes his way. That's the confirmation for all of you. Amir Jamal will be seen in this blue jacket very soon out of the yellow uniform now. Next pick अब हमारी जा रही है मुल्तान सुल्तान के पास. गोल्ड कैटेगरी में इनकी सेकंड पिक होगी. आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब. वापस हम आएंगे कराची किंग्स के पास. आप लोगों ने आमिर जमाल को सेलेक्ट किया है, इसके पीछे क्या वजह है? Bismillahirrahmanirrahim, because he is very good player and all-rounder and main thing he is fighter और हमें टीम में एक ऐसा प्लेयर चाहिए था कि जो टीम के लिए फाइट करे और इस तरह के कैरेक्टर्स हमें टीम में चाहिए और वो हमारी टीम में फिट इन करता है और ही इज़ वेरी गुड बॉलर एंड विद वेरी गुड हैंडी बैट्समैन एंड मेन थिंग्स सेम. आप खुद भी बड़े अच्छे फाइटर हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपकी फील्डिंग में परफॉर्मेंसेस, बैटिंग में परफॉर्मेंसेस, अब हर जगह पर हम वो देख रहे हैं. आप कैसा टाइम एंजॉय करें कराची किंग्स के साथ? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई लाइक फाइटर्स. थैंक यू. यू आर द राइट पर्सन टू अनाउंस द पिक. थैंक यू वेरी मच. अब हम जाएंगे मुल्तान सुल्तान के पास जिनका टाइम ख़त्म होता है. Would you like to share the next pick? जी, for our next gold pick, we would like to request another special guest, the coach of the gold medalist Arshad team, Mr. Salman Butt Saab, an unsung hero of Pakistan. Thank you, Ali. It's a privilege and an honor to be here at this event this evening, and I wish the organizers of PSL a very successful tournament up ahead. As for the pick this evening for our organization is Kamran Ghulam. Thank you so much, sir. It's an honor for us that you are here. The pick for Multan Sultan, the confirmation, Kamran Ghulam from Lahore Qalandar makes his way to Multan Sultan for this season. अब जो नेक्स्ट पिक है, पिक नंबर 6, वो होगी पेशावर ज़ल्मी के पास. आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब और हम वापस जाएंगे मुल्तान सुल्तान के पास. आप लोगों की लास्ट पिक की जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में हम मज़ीद बात करना चाहेंगे. अभी ये पिक करना ज़्यादा मुश्किल है कि बात कौन करेगा. मोहम्मद वसीम साहब, बताइए आप. एक और माइक मिल सकता है हमें यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के पास? सिर्फ 2 पिक्स रह चुकी हैं. पेशावर ज़ल्मी का टाइम भी ऑलमोस्ट अप हो चुका है और अब हमें मुल्तान सुल्तान से फाइंड आउट करना है कामरान गुलाम को उन्होंने सेलेक्ट किया है, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे. जी, फाइनली इट्स वर्किंग. जी जी बिल्कुल. देखें, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और स्पेशली जिस वेदर में PSL होने जा रही है इस दफ़ा, तो वो रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो वो आर लुकिंग एट द प्लेयर्स के वो आर इक्वली गुड अगेंस्ट स्पिन एंड पेस, और जो मिडिल ऑर्डर में जो एक रोल हमने सोचा है उसको फुलफिल कर सकें. और जिस तरह की फॉर्म कैरी कर रहे हैं अभी कामरान गुलाम और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू सो मच. पेशावर ज़ल्मी, आप लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है. आप लोग भी अगर पिक का अपना बता दीजिए. पिक नंबर 6 फॉर यू गाइज इन गोल्ड कैटेगरी. Yes, from Bangladesh, speedster Nahid Rana. और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सीम बॉलर्स की और कॉन्फर्मेशन है पेशावर ज़ल्मी की. गोल्ड पिक नंबर 6 नाहिद राना, उनको पिक किया गया है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से. और अगली पिक भी पेशावर ज़ल्मी के पास ही है. आपके पास हम दोबारा आएंगे, आपका टाइम हम दोबारा शुरू करेंगे. और जितनी देर हम पेशावर ज़ल्मी को एक और मौका दे रहे हैं सिलेक्ट करने का, बताते चलें कि HBL PSL फैंस चॉइस अवार्ड्स करवाया गया था. ये इनिशिएटिव लिया गया. फॉर द लास्ट 10 years द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्लेयर्स
उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई और फैंस के साथ मिलकर एक कंपटीशन कराया गया। उसमें हम डिफरेंट आने वाले जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर हम डिफरेंट नॉमिनेशंस भी अनाउंस करेंगे, विनर्स भी अनाउंस करेंगे, और जो फैंस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया दे हैड अ चांस टू विन टिकट्स फॉर द HBL PSL, वो भी हम ज़रूर आपको बताते चलेंगे अगली कैटेगरीज में। और अब सिर्फ आखिरी पिक रह चुकी है पेशावर ज़ल्मी के पास और बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है ओवरऑल, और मेरे ख्याल से अब रेडी हैं मोहम्मद अकरम अपनी पिक के साथ। जी हुसैन तलत। हुसैन तलत, और थोड़ा सा आप ब्रीफ भी कर दीजिए हुसैन तलत, क्यों आपने पिक किया है हुसैन तलत? हुसैन तलत हमारे साथ कुछ सालों से हैं और बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है और ऑलराउंडर है, और हमें नंबर 5 के लिए देखना था। तो जिस वक्त क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, उसमें इस तरह के प्लेयर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ऑलराउंडर हैं। सो दैट्स वाई आई मीन सारे जानते हैं उन्हें, और मेरा ख्याल है हमारे जितने भी इंजी भाई, बाबर, सारे अलाइंड थे कि हम हुसैन तलत को लेंगे, तो दैट्स वाई। थैंक यू सो मच। अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, अभी 100 भी किया है डोमेस्टिक में, अगर हमें याद हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस। तो पिक है 7वीं जो गोल्ड की पेशावर ज़ल्मी की, वो हुसैन तलत है, और गोल्ड कैटेगरी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। और अब हम जाएंगे सिकंदर के पास एक बार फिर स्टूडियो की तरफ। Thank you so much, Sana, and welcome back to our studio once again. Talking about the gold category, और शानदार पिक्स नज़र आई हैं और काफ़ी कुछ स्ट्रेटेजिक पिक्स नज़र आई हैं, जिसमें ऐसे नाम हैं जो यूजुअली हाउस होल्ड नेम्स हैं जब क्रिकेट की बात हो रही होती है, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हों या लोकल प्लेयर्स हों। और हाउस होल्ड नेम का जिक्र करें तो 2 हाउस होल्ड नेम क्रिकेट की दुनिया से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन बिस्मा मारूफ मेरे साथ हैं, वेलकम बिस्मा, और करंट लाहौर कलंदर्स के कप्तान एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम की शान शाहीन शाह अफरीदी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। इनको मैंने टीम से खास तौर से दूर किया था कि वो अपनी मर्जी की पिक कर लें। आतिफ भाई ने मुझसे कहा था थोड़ी देर ले जाना है इसको। चलिए बात करते हैं, मैं सुना नहीं है शाहीन ने अभी। गोल्ड कैटेगरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। यूजुअली लोग कहते हैं कि प्लैटिनम में बड़े हाई प्रोफाइल प्लेयर्स नजर आएंगे, लेकिन ये गोल्ड कैटेगरी भी वो कैटेगरी है जो आपका बेसिकली कोर फॉर्म करती है, जिसमें बड़े हैंडी प्लेयर्स हैं। क्योंकि T20 फॉर्मेट है, ज़्यादातर आप ढूंढ रहे होते हैं ऑलराउंडर्स जो तीनों डिपार्टमेंट्स में आपके लिए कुछ कर सकें एज ए टीम मेंबर। बट मैं अभी जिक्र कर रहा था शाहीन से कि इस बार रुझान नज़र आया है कि फास्ट बॉलर्स काफ़ी पिक हो रहे हैं। इस कैटेगरी के अंदर भी हमें नज़र आया है ऑलराउंडर्स में बेंजामिन, मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल, नाहिद राना, सो इंटरनेशनल से पहले जेसन होल्डर। स्ट्रेंज है कि फास्ट बॉलर्स की तो कभी कमी थी नहीं। इसमें अगर आप देख ले तो हमारे 2 अपने ये हसनैन और आमिर जमाल, राना एक नया नाम है इसमें से, काफ़ी अच्छा बॉलर है, बांग्लादेश का टैलेंट। आई थिंक रिटेंशन में होता है कि आप किसको रिटेन करते हैं अर्ली ऑन, फिर आप प्लान करते हैं कि यार कौन हमारे लिए अच्छी चॉइस हो सकता है प्लेइंग 11 में, तो उस हिसाब से करते हैं। सो आई फील फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा उस पर काम करना चाहिए और उसको और ग्रूम करना चाहिए। बिस्मा, आप कितना फॉलो करती हैं HBL PSL को, नाउ दैट यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट एंड टेकिंग सम गुड फैमिली टाइम आउट, वाचिंग HBL PSL सीजन पिछले कोई देखे हैं अभी तक? जी ऑफ कोर्स, हमारी अपनी लीग है और बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अ फैन ऑफ इट, और आई विश द बेस्ट ऑफ लक ऑल द टीम्स। आई होप ये भी PSL उसी तरीके से जैसे सारे एडिशंस रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले फातिमा से भी मैं यही पूछ रहा था कि उनकी अपनी कौन सी टीम है जिसको एज अ क्रिकेटर वो देखती हैं कि आई लाइक देयर बैलेंस। आपको इस सीज़न में तो अभी फॉर्म ही हो रही हैं टीम्स, लेकिन कौन सी ऐसी टीम है जो आपको इम्प्रेस कर चुकी है एज अ क्रिकेटर? All the teams I follow, but of course I have been associated with Islamabad United, so yeah, ज़्यादा हार्ड जो है उनकी तरफ है। वो जीते भी हैं, 3 जीत गए, कितने और चाहिए उनको? Of course, inshallah they will win this too. मैं बात कर रहा था नंबर ऑफ विंस। क्या ऐसी चीज़ होती है शाहीन जो लड़कों के अंदर आप करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉक? 2 टाइटल्स जीत लिए हैं, कहते हैं कि नहीं यार एक और जीतना है, एक और जीतना है। सो एक कौन सी ऐसी चीज़ जो ड्राइव करती है हर साल के लेट्स डू इट अगेन? टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाहौर कलंदर की अपनी मेहनत है, PTP के प्रोग्राम के उससे प्लेयर को प्रोड्यूस किया। जो आपके लोकल प्लेयर करते हैं आई थिंक वो आपके लिए एक एज फैक्टर होता है, और
क्योंकि लोकल प्लेयर को ग्रूम करना और वो फिर क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि अपनी विकेटों पे कैसे परफॉर्मेंस करना, तो आप जितना भी देखें 6-7 साल का जो सफ़र था पीटीपी का, लाहौर कलंदर और पीटीपी का, तो आई थिंक उसकी वजह से फिर प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की। जो हम 2 इवेंट भी जीते हैं तो उसमें अगर लोकल प्लेयर देखें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, उसकी वजह से हम दोनों टाइटल जीते। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस सपोर्ट उनको चाहिए प्लेयर्स को। इस टाइम जब आप हारते हैं तो ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो आई थिंक सिर्फ यही हम कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करें प्लेयर्स को। अभी टीम्स पिक हो रही हैं, T20 फॉर्मेट है, यू बीन अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ कोर्स, व्हाट वाज योर मेन फोकस व्हेन यू वर पिकिंग अ T20 साइड? किस चीज़ पे ज़्यादा अहमियत होती है? समवन हु कैन डू एवरीथिंग, अ गुड फील्डर, अ गुड बॉलर, बिट ऑफ अ बॉलर एंड अ बैटर, किस तरह का फॉर्मेशन आपको पसंद? आई थिंक T20 में ऑलराउंडर्स का बहुत ज़्यादा आई थिंक रोल रहता है, एंड आई थिंक फील्डिंग इज़ मेन फैक्टर। जब भी आप टीम पिक करते कोशिश करते हैं कि एनर्जेटिक प्लेयर्स को पिक करें, एंड वो प्लेयर्स पिक कर सकें जो दोनों रोल्स आपके लिए कर सकते हो। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा जो आपका कॉम्बिनेशन 11 का जो होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। शाइन, कोशिश तो यही होती है हर कप्तान की कि किसी प्लेयर को जाने ना दे। पिछले सीजन में परफॉर्मेंस रही है, उससे लास्ट टू लास्ट आप लोग जीते हैं। इस ग्राउंड की बात करते हैं गोल्ड की, जिसमें कामरान गुलाम आपके साथ रहे हैं, तो इट मस्ट बी अ टफ कॉल। अब वो मुल्तान सुल्तान की तरफ गए हैं, बट बहुत डिफिकल्ट डिसीजन तो होता है, लेकिन किस तरह से लेट गो करना पड़ता है उस प्लेयर को, किसी भी प्लेयर को जो परफॉर्म करता है वो आपके लिए? बिल्कुल, आई थिंक एज अ कैप्टन मेरी तो यही चॉइस होगी जो मेरा कोर है वो बिल्कुल ख़राब ना हो, और अगर रिटेंशन 8 से ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स कमरान खुला मेरी चॉइस थी। लेकिन हम पिक कर सकते थे, लेकिन गुड लक फॉर हिम कि वो नेक्स्ट अगले टीम के लिए गए और उधर अच्छी परफॉर्म करे। पाकिस्तान के लिए भी रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं टेस्ट और वनडे में, और टफ़ है बट होपफुल हम वो जगह फिल करेंगे और अपने लिए एक अच्छा प्लेयर देखेंगे। HBL PSL वो प्लेटफॉर्म है, वो विंडो है जहाँ से आप नेशनल साइड में भी सेलेक्ट होने के बहुत आपके चांसेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर सीजन। अभी कुछ अरसे पहले ही चैंपियंस कप हुआ, उसमें आपने देखा होगा ये लड़के को, अब्दुल समद को, अच्छी परफॉर्मेंस दी बैट के साथ, बहुत शानदार टैलेंट नज़र आए हैं। सो गुड टू सी कि ये डिफरेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट से नया टैलेंट नज़र आता है, और ये जो पूल है जहाँ से प्लेयर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं अभी ड्राफ्ट में, वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल, अब्दुल समद की आपने बात की है, उस काफ़ी अच्छा खेला है रिसेंटली। जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान से खेला है, जो पाकिस्तान शाइन की टीम थी उससे खेला है, और वैसे नंबर का बैट्समैन आपको चाहिए जो गेम को फिनिश करे, वो हो गया खुशदिल हो गए। ये दोनों ऐसे प्लेयर है कि वो गेम को किसी भी टाइम आपके लिए चेंज करवा सकते हैं, तो आई थिंक एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने बात की थी, बिस्मा, यू एसोसिएटेड विद देम एंड लास्ट ईयर यू वर पार्ट ऑफ देम। आपको पर्सनली क्या इंप्रेस करता है अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड? ऑफ कोर्स व्हेन यू वर आस्क्ड टू डू दैट जॉब, आपने कोई पर्टिकुलर्स देखे होंगे कि हाँ, दिस आइडेंटिफाइज मे बी विद माय क्रिकेट और माय स्टाइल ऑफ क्रिकेट। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इस्लामाबाद? वेरी मच इनका जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है काफ़ी काम है, एंड प्लेयर्स के पास फ्रीडम है कि अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई थिंक फॉर मी एज अ प्लेयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास प्लेयर्स के पास इतनी स्पेस हो कि वो फियर और फेलियर उसके जहन में ना हो और अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। शाहीन, कितना दखल रहा है सिलेक्शन में डिफरेंट विंडो का? यूजुअली फरवरी में होता है HBL PSL, इस बार मच लेटर इन द ईयर हो रहा है, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, थोड़ी गर्मियों का आना होता है उस वक्त, तो कितना रोल है आपकी सिलेक्शन में उस चीज़ को माइंड में रखते हुए कंडीशंस को? बिल्कुल, आप अगर देखें जो अभी तक पिक हुई है उसमें ज़्यादा सारी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक ऑलराउंडर हम ले लें अपनी टीम में, क्योंकि सर्दी तो इतनी नहीं होगी लेकिन वेदर अच्छा होगा, विकेट थोड़ी सी ड्राई होगी। सो होपफुल के उसमें स्पिनर्स का काफ़ी इम्पैक्ट होगा उस टाइम पे, इसलिए सारी यही कोशिश करें कि हमें अच्छी पिक मिले। सो एक ऐसा महीना है कि पहले कभी खेले नहीं इसमें HBL PSL, सो होपफुल इस दफ़ा हम इस हिसाब से ही पिक कर रहे हैं सारे। अभी एक और पिक थी जो मुल्तान सुल्तान ने की है, मोहम्मद हसनैन की, जो कि रिसेंटली चैंपियंस कप, डिफरेंट फॉर्मेट था, वनडे था, जिसमें वो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, एंड वी सी अ डिफरेंट हसनैन नाउ आफ्टर उन्होंने जाके आई थिंक इंग्लैंड गए थे, कहीं गए थे, फास्ट बॉलर्स अकेडमी में उन्होंने काफ़ी काम किया अपने ऊपर। सो इंटरेस्टिंग टू सी मोहम्मद हसनैन बीइंग पिक्ड बाय मुल्तान सुल्तान एज ही इज लुकिंग एट द पीक ऑफ हिज गेम राइट नाउ। आई थिंक वेरी गुड पिक। जिस तरह से उनकी अब कंसिस्टेंसी रही है, उनकी इंजरी थी उसके बाद से उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया है, एंड आई थिंक विकेट टेकर ऑप्शन रहेंगे, और आई होप ही कैन परफॉर्म रियली वेल इन दिस एडिशन।
फास्ट बॉलर खुद है आप शाहीन, कितना आसान या डिफिकल्ट होता है दूसरे फास्ट बॉलर को पिक करना या जाने देना, क्योंकि एक बैलेंस तो आप क्रिएट करेंगे। हारिस और आपकी जोड़ी जो है काफ़ी टाइम से लाहौर कलंदर्स में फीचर कर रही है, फिर आपके पास ऑप्शन में डेविड वीज़ा मौजूद हैं जो कि आपको बैट और बॉल दोनों के साथ देते हैं। राशिद शायद नहीं होंगे इस बार, लेकिन सिकंदर राजा, तो आपके 5 तो पक्के हैं जो बॉलर्स हैं, और स्पेस बनती है लोगों को लिए। हसनैन की आपने बात की, हसनैन इंजरी के बाद आया, वो काफ़ी अच्छा हो गया माशाल्लाह, उसकी पेस और उसका एक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है जो वापस आया पाकिस्तान के कल में। होपफुल वो अच्छी परफॉर्म करेगा, और हमारी जो रिटेंशंस है वो मकसद ये है था कि अपनी बॉलिंग को कोर को बिल्कुल भी हम छेड़े ना, क्योंकि जो हम 3-4 सालों से एक ही पूल खेल रहे हैं, तो होपफुल उसी के साथ जाएँ। जानदाद उसमें आया है, सो होपफुल इसको और कैरी ऑन करें नए बॉल के साथ, और भी हमें विकेटें मिलें। कितना आसान या डिफिकल्ट होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट, आप देखती भी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी है, ये छोटा सा विंडो है 1 महीने का, और इसमें जाना, टीम बॉन्डिंग भी करना, एक दूसरे को समझना भी, रोल्स अंडरस्टैंड करना, और फिर निकल भी जाना, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम फॉर फ्रेंडशिप्स, इतना टाइम तो होता नहीं। आई थिंक इसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, एंड फॉर द बॉयज़ आई थिंक एक्सपोजर बहुत अच्छा है कि आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मिलते हो, उनसे अपना नॉलेज शेयर करते हो, और आपकी जो मैनेजमेंट है वो कोचेज़ फॉरेन कोचेज़ की इसमें हम देखते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जो नॉलेज यहाँ पर शेयर किया जाता है। और फॉर द यंगस्टर्स जो कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स आते हैं, आई थिंक ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर देम कि वहाँ पर वो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो है ना वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, और अपने आप को बड़ा अच्छा जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। शाहीन एज कैप्टन इस बार ये एक एडवांटेज रहा होगा हसानी के, जो HBL PSL की विंडो है उस पर कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, तो प्लेयर्स का पूल भी बड़ा है और प्लेयर की अवेलेबिलिटी भी थ्रू आउट है, तो ये अब एज कैप्टन काफ़ी आसानी होगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से और अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स आपको मिले हैं। हमने पिछले PSLs में भी अच्छे प्लेयर्स मिले, लेकिन यहाँ पे आपको और वैरायटी मिली है प्लेयर्स की, जो फुल सारी टीमें यही सोच रही है कि अच्छे अच्छे प्लेयर ले उस टाइम के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिली, और आपके पास प्लेयर्स के एक ऑप्शंस भी है कि सारे प्लेयर्स, और ये अकेले भी है पाकिस्तान पे, तो फुल सारी उसी पे नज़र रखेंगे, जो अच्छी परफॉर्मेंस इधर की है उनको पहले पिक करें। मैं दोनों से ही सवाल पूछता हूँ, दोनों कैप्टन्स हैं, कि ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ मैचेस बैक टू बैक ही हो रहे होते हैं, कभी टीम हार रही हो तो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, आप एक मैच हारे हैं और 2 दिन बाद 1 दिन बाद फिर से आपका मैच है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करते हैं एज कैप्टन टू जस्ट फॉरगेट दैट प्रीवियस मैच और इमीडिएटली फ्रेश स्टार्ट ले, कहना आसान होता है? ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर को और पास्ट को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ लीडर, आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने सारे प्लेयर्स को साथ उठाएं और उनको लुक फॉरवर्ड करें कि जो हमारे पास प्रेजेंट में है सिचुएशन को हम उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कलंदर्स के कैप्टन के तौर पे आपने 2 सीज़न बैक टू बैक टाइटल जीते, फिर लास्ट सीज़न इतना अच्छा रहा नहीं, व्हाट डू यू फील, क्या गलती थी उसमें एंड व्हाट आर यू करेक्टिंग हियर? गलती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हर दफ़ा आप सीखते हैं और आपके लिए सीखने की चीज़ें होती है। मेरे ख्याल से एज़ अ क्रिकेट हम अच्छी खेले हैं टीम, उसमें यह था कि रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आए। कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही बैटिंग साइड पे, बॉलिंग, लेकिन वो एज़ अ टीम नहीं रही। सो हम इसमें यही कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को बैक करें, सपोर्ट करें, जो कि एक टीम को चाहिए होती है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जब आप हारते हो आप अपनी टीम से बात करते हो, एक होता है ना नॉर्मल कि जब आप हारते हो तो फिर बात करो, नहीं, मेरे ख्याल से जीतने पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई परफॉर्मेंस करता है उससे कम करे और जो नहीं करता उससे ज़्यादा करे, उसको सपोर्ट करे। जितना आप अपने प्लेयर को बैक करते हो वो आपके लिए परफॉर्मेंस करता है। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, अब वेस्ट इंडीज़, उसके बाद साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड ट्राई नेशन, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी, पेट्रोल रहेगा टैंक में अप्रैल तक? मैं कह रहा हूँ इतनी एनर्जी रहेगी कंटिन्यूस क्रिकेट? नहीं, बिल्कुल रहेगी, और टाइम हमारे पास होगा उसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। होपफुल के HBL PSL इंशाल्लाह इस दफ़ा कलंदर के लिए अच्छा रहेगा। Interesting thing, little away from cricket, and I'm sure the viewers who are sitting at home, especially the girls, the young girls who look to play for Pakistan, and Bisma is here, the best mentor or best person to actually look up to. How has that phase been from leaving the field and spending time with family? Because no matter what you say, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, एक एडिक्शन होती है। ऑफ
ऑफ कोर्स 18 years आपने जहाँ पर दिए हुए हों, इट्स डिफ़िकल्ट टू पार्ट वे फ्रॉम इट, बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो अभी मैं टाइम गुजारी हूँ, फैमिली टाइम, और आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन 18 सालों में इतना मैंने टाइम नहीं गुजारा फैमिली में, तो अब ऐसा मुझे मौका मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंजॉय कर रही हूँ। आई थिंक वो फ्रेश अप होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कहते हैं जो परफॉर्मिंग कर रहे होते हैं लोग टीवी के सामने, एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गई, कहते हैं कभी कभार आपको एज अ व्यूअर भी देखना चाहिए टीवी को, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं। क्रिकेट से थोड़ा दूर रह के ब्रेक लेके डज इट हेल्प एज अ स्पोर्ट्समैन के कुछ टाइम ब्रेक लिया एंड जस्ट लुकिंग एट द गेम? वो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल पे कि वो कैसे लेता है। मेरे ख्याल से हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। कभी कभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती लेकिन वो भी अच्छा होता है। आपको इर्द गिर्द अच्छे लोग चाहिए उस टाइम जो आपको सपोर्ट करे, आपकी अच्छी चीज़ें आपको बताए कि यार ये आपने अच्छा किया। आई नो आप बैक टू बैक खेलते हैं तो आपको बहुत चीज़ें आप करते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं होता, तो आपको ऐसे लोग चाहिए, फैमिली मेम्बर चाहिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करें। आपकी नज़र में क्या वो एक ख़ास वजह थी जो लाहौर कलंदर की सक्सेस स्टोरी बनी? इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो लाहौर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, बैक टू बैक टाइटल्स का कोई एक विनिंग फॉर्मूला था यू फील कि ये हमने किया डिफरेंट? मैंने ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया, वही मैं कहूँ